So you guys already know this, right? And secondly, you need to understand, you need to remember the details of Haber process, the temperature, pressure, and reaction condition, and the concept of compromised temperature. And you all should also already know contact process, conditions, and the concept of compromised temperature. आपको याद होना चाहिए कि टेम्परेचर हम बढ़ाते थे ना, टेम्परेचर हम बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं ना बहुत कम रख सकते हैं. इफ़ यू इंक्रीज इट टू मच तो यील्ड कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, और अगर इफ़ यू डिक्रीज इट तो रेट कम हो जाता है. दैट्स व्हाट वी स्टडीड इन ओ लेवल्स. एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? ये आता है ना सब कुछ? ये आपको यहाँ पे भी पूछा जाएगा. ठीक है शहीद. ओके, हु इज लेफ्ट? ओके, व्हाट अबाउट यू रूमेसा? ओके, great. Let's move. Let's go on to our actual topic. ओके, सबसे पहले द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, ये भी हमें ऑलरेडी पता है. व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम? एवरी रिवर्सिबल रिएक्शन tries to achieve the state of dynamic equilibrium. And we actually memorized two definitions in O levels. One was the rate of forward reaction. One was that rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. Yeah, the speed at which reactants are changing to products is basically equal to the speed at which products are changing back to reactants. It does not mean that amount of reactants is going to be equal to amount of products. It just means that the speed at which reactants are converting into products are the same, okay, to the speed at which products are converting back into reactants. And the second definition was that the concentration of reactants and products do not change with time. Concentration of reactants and products do not change with time. Okay, these are the two definitions. From this statement अक्सर बच्चों को एक ये अज्यूम कर लेते हैं दैट मीन्स कि अमाउंट उनकी सेम है, उनकी कंसंट्रेशन सेम है. इट डजंट मीन कि उनकी कंसंट्रेशन सेम है. You cannot say concentration of reactants and products is same. You can say that it is constant. It is not changing over time. जो reactants हैं वो उतने ही हैं, जो products हैं वो उतने ही हैं. That does not mean कि वो दोनों बराबर हैं. Okay? Okay. अच्छा, अब हम एक न्यू लॉ पढ़ेंगे दैट इज नोन एज इक्विलिब्रिया लॉ. इक्विलिब्रिया लॉ या इक्विलिब्रियम लॉ. वो ये कहता है, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव दिस रिएक्शन ऑफ हेबर प्रोसेस अमोनिया की फॉर्मेशन का, इट स्टेट्स दैट द फ्रैक्शन ऑफ, let me just put it just right. Equilibria. Yeah. कि fraction of, let's say fraction of का मतलब है फ्रैक्शन बनाना है हमने, राइट? ये मैंने फ्रैक्शन बल्कि जगह छोड़ दो नीचे, ये फ्रैक्शन की लाइन लगा दी. तो फ्रैक्शन ऑफ concentration of products, concentration of products. ठीक है, अब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, कंसंट्रेशन को ना हम स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हैं. अगर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए लिखा हुआ है इसका मतलब है ए की कंसंट्रेशन. तो प्रोडक्ट क्या है मेरा? अमोनिया. तो फ्रैक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ये अमोनिया की कंसंट्रेशन आ गई. फ्रैक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स raised to their coefficients
रेज टू देयर कोफिशिएंट्स, यानी कि जो इनके कोफिशिएंट हैं वो एक्सपोनेंट बन जाएंगे। अब अमोनिया का कोफिशिएंट क्या है, 2, वो यहाँ पे कोफिशिएंट बन जाएगा। अभी तक जो जितनी डेफिनेशन की है मैंने लिखी है उतना मैंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा है। फ्रैक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू देयर कोफिशिएंट, ओके, over the concentration of reactants, over the concentration of reactants, ये लो concentration of reactants लिख दी मैंने। अब कितने reactants हैं, 2 हैं, नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है। concentration of reactants raised to their coefficients, raised to their coefficients, तो कोफिशिएंट पे रेस कर देते हैं। नाइट्रोजन के पीछे तो कुछ मानना है, ऊपर कुछ भी नहीं आएगा। हाइड्रोजन का कोफिशिएंट 3 है तो एक्सपोनेंट 3 हो जाएगा। So fraction of concentration of products raised to their coefficients over the concentration of reactants raised to their coefficients is equal to a constant. Is equal to a constant which is known as equilibrium constant, Kc. ठीक है, दिस इज द लॉ। प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन और रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन का जो फ्रैक्शन होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होता है। ठीक है, जो कि हमें बताता है क्या है, जो कि हमें सिंपली बताता ये है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जितना ज़्यादा है इसका मतलब है उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहा है, क्योंकि न्यूमरेटर में क्या है, प्रोडक्ट है ना। बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको इक्विलिब्रियम की पोजीशन बताता है कि इक्विलिब्रियम ज़्यादा राइट पे है या ज़्यादा लेफ्ट पे है, ज़्यादा प्रोडक्ट साइड पे है या ज़्यादा रिएक्टेंट साइड पे। ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है इट मीन्स प्रोडक्ट्स की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट्स के साथ ही। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब है, इन अदर वर्ड इट ऑल्सो मीन्स के रिएक्टेंट्स की अमाउंट कम है। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब है प्रोडक्ट की अमाउंट ज़्यादा है, इसका मतलब है इक्विलिब्रियम राइट साइड पे ज़्यादा है। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम है इसका मतलब है प्रोडक्ट्स की अमाउंट कम है, जब प्रोडक्ट्स की अमाउंट कम है इसका मतलब है इक्विलिब्रियम लेफ्ट पे ज़्यादा है। तो बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेल्स यू अबाउट द पोजीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक क्लियर कर दो जरा मुझे। शमांति, शहीर, रुमैसा, ओके। What I'm saying is, Shamanti, that when you say explain again, na, please tell me from where. So I'm assuming कि एक्सप्रेशन की बात कर रहे हो आप। Kc की वैल्यू जितनी ज़्यादा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा, the greater the equilibrium constant, greater will be the amount of products. Because न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में प्रोडक्ट्स। If you say that equilibrium constant is greater in value, that means that product की amount is greater than value. Yes, and that means that equilibrium will lie on the right hand side, on the product side. And if the amount of equilibrium constant is on the lower side, it means that reaction में products कम बन रहे हैं, because equilibrium constant की amount जब कम होगी तो products की amount कम होगी, products की amount कम होगी तो equilibrium will lie on the left hand side. Is it clear now, Himanti? Okay. Now we need to find out the units.
केसी के जो यूनिट्स होते हैं ना वो डिपेंड करते हैं रिएक्शन के ऊपर, दे कीप ऑन चेंजिंग, क्योंकि ऑब्वियसली ये कॉफिशिएंट्स वगैरह पे डिपेंड कर रहे होते हैं, और ये भी हो सकता है केसी की कोई यूनिट ना हो। अब इसके फिगर आउट करते हैं यूनिट्स। अब ये कंसंट्रेशन की वैल्यूज है, राइट। अब कंसंट्रेशन मोल्स पर डीएम क्यूब होती है, तो या तो हम ये करें, अगर मुझे इसके यूनिट फाइंड आउट करने हैं, या तो मैं ये करूँ, मैं सब में मोल पर डीएम क्यूब कर दूँ। मैं आसान तरीका ये करता हूँ, मैंने अभी कंसंट्रेशन स्क्वायर, कंसंट्रेशन इनटू कंसंट्रेशन क्यूब, ये कंसंट्रेशन लिख दिया, इसकी जगह कंसंट्रेशन क्यूब लिख दिया, इसकी जगह कंसंट्रेशन लिख दिया। आई एम जस्ट सिंप्लीफाइंग इट फर्स्ट। इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो ये आ जाएगा 1 ओवर कंसंट्रेशन स्क्वायर। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर डीएम क्यूब। अब यहाँ पे प्लग इन कर दो मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब। अब यहाँ से आसानी से निकल आएगा, तो क्या निकलेगा, ये डीएम क्यूब ऊपर चला जाएगा और 3 2 से मल्टीप्लाई होकर DM6 हो जाएगा और मोल -2 होगा। ये केसी के यूनिट्स आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा तरीका ये था कि आप ऊपर से ही मोल पर डीएम क्यूब, यानी कि यहाँ पे जहाँ पे मैंने कंसंट्रेशन किया, अब यहाँ पे मोल पर डीएम क्यूब डाल दो। यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है डायरेक्टली। अगर मैं यहाँ पे यहाँ से शुरू कर दूँ कि मोल पर डीएम क्यूब मैंने प्लग इन किए, ये स्क्वायर है, दिस इज मोल पर डीएम क्यूब एंड दिस इज मोल पर डीएम क्यूब। लिखना भी ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। इसको कैंसिल कर लें, ये पूरे कैंसिल हो जाएंगे एंड यू आर लेफ्ट विद 1 ओवर मोल स्क्वायर DM6। तो इवेंचुअली आप इसी पे ही आओगे, ठीक है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट द यूनिट्स, ओके। लेट्स मूव ऑन टू द प्रेजेंटेशन। जो जो यूनिट्स निकाले हैं मैंने, वो मैं सर जो यूनिट्स की बात कर रही हूँ, ये देखो, दैट्स व्हाट आई डिड। दिस अप, ये कंसंट्रेशन की टर्म्स है ना सारी, तो मैंने कंसंट्रेशन लिख दिया CONC पहले मैंने, फिर उसके बाद कैंसिल कर दिया। ये स्क्वायर इसके स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया है, अब ये कंसंट्रेशन इनटू कंसंट्रेशन रह गया। 1 ओवर कंसंट्रेशन स्क्वायर इज 1 ओवर मोल स्क्वायर ओवर DM6। उसके बाद ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, इसका मैंने लिखा है इसी तरह से, इस इक्वेशन का। अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन विच वर दिस एस्टर और वाटर ओवर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन वो दिस, इनके कोई कोएफिशिएंट्स थे ही नहीं, तो जब आप इनके ये यूनिट्स निकालने जाओगे तो एक्चुअली में कोई यूनिट नहीं आएगा, बिकॉज दे विल कैंसिल ईच अदर आउट, ठीक है। अभी देखो, एक सिंपल सी एग्जांपल है, उसमें आपको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस दी हुई हैं, SO2 की भी दी हुई है, ऑक्सीजन की भी दी हुई है, SO3 की भी दी हुई है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलोंग विद इट्स यूनिट्स। तो आपको सबसे आपने क्या करना है, केसी निकालना है। केसी का एक्सप्रेशन लिखेंगे आप, प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। तो SO3 प्रोडक्ट्स उसकी कॉफिशेंट ओवर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन स्क्वायर और ऑक्सीजन, ठीक है। SO3 का आ रहा है 0.15, इसका स्क्वायर ओवर SO2 का 0.016, इसका स्क्वायर, और ऑक्सीजन की कितनी है 0.0083। इसको सॉल्व करेंगे तो केसी आ जाएगा, और इसके यूनिट्स आपको सेपरेटली निकालने पड़ेंगे। तो यूनिट्स में कैसे निकाल लूँ, कंसंट्रेशन स्क्वायर ओवर कंसंट्रेशन स्क्वायर इनटू कंसंट्रेशन, ये कैंसिल हो जाते हैं,
वन ओवर कंसंट्रेशन, यानी कि वन ओवर मोल पर डी एम क्यू, इसके यूनिट्स आ जाएंगे पर मोल डी एम क्यू। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है। यानी कि अगर आपको इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन दी हुई है, कंसंट्रेशन की वैल्यूज आपको दी हुई है, केसी का एक्सप्रेशन लिखना है, उसके अंदर सिर्फ प्लग इन करनी है। यहाँ तक क्लियर है एवरीबडी? ओके ओके। सो वी हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन। मैं डायरेक्टली पास्ट पेपर क्वेश्चंस पे जा रहा हूँ। दैट्स द बेस्ट वे टू एक्चुअली आइडेंटिफाई। मैं क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, मैं क्वेश्चन पूरा कर लूँ पहले ज़रा मैं, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो P प्लस टू क्यू फॉर्म्स R प्लस S। आई थिंक आयमा आ गई है। आयमा बच्चे, वाई आर यू लेट? आयमा लेट क्यों हो गई हो? ओके, ये क्वेश्चन है हमारे पास, पढ़ो जरा इसको। R प्लस S moles of P। ओके, आई एम प्रीटी श्योर ये पढ़ के बिल्कुल कुछ कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इक्विलिब्रियम में, और इससे हम एक मेथड से करते हैं, विच आई कॉल आइस मेथड। आई कॉल दैट आइस मेथड, आइस आइस बेबी वाला आइस मेथड। P plus 2Q R plus S. He's saying that 1 mole of P and 1 mole of Q are mixed in 1 dm cube of water. Once equilibrium has been reached, 0.6 moles of P are present. तो उसने आपको ये बता दिया कि इनिशियली P और Q के कितने मोल्स थे आपके पास, और ये बता दिया कि इक्विलिब्रियम पे P के 0.6 मोल्स पड़े हुए हैं। अब वो कह रहे हैं हाउ मेनी मोल्स ऑफ Q R एंड S आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kc। Kc निकालने के लिए आपको चाहिए कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशंस के लिए आपको क्या चाहिए होगा? कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू सी इन टू वी। कंसंट्रेशन के लिए आपको वॉल्यूम चाहिए होता है और मोल्स चाहिए होते हैं। वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 1 डी एम क्यूब, मोल्स आपके पास नहीं है, वो आपने निकालने हैं। तो अब वही हमने निकालने हैं फ्रॉम आइस मेथड। ये इक्वेशन गिवन है, अब मैंने ये अपनी तरफ से नहीं लिखी। आधे घंटे की नमाज असर की आयमा, अल्लाह ताला पे डाल रही हो यार तुम अपना लेट होना। आधा घंटा लेट आई हो खैर, ट्राई टू ग्रास्प इट, अभी जितनी क्लास ले रही हो तो। ओके, वैसे 6 बजे तक असर का टाइम रहता है यार। हाँ नहीं, चलो अभी जितना मैं कर रहा हूँ इसको ग्रास्प करो, कोर लेसन का यही है। अच्छा, हम ना, ये इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर, मैंने खुद नहीं लिखी। तुम इसके साथ कंफ्यूजन, वो इसके साथ कंफ्यूज ना हो कि तुम ऊपर स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है। ओके, अरे हाँ, ओके ओके ओके, रिजल्ट आने वाला है इस वजह से। राइट 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 राइट। लंबी दुआएं चल रही हैं। ओके, लेट्स लेट्स स्टार्ट विद आइस मेथड। I for initial moles, T for change in moles, E for equilibrium moles,
ठीक है, इनिशियल मोल्स कितने थे, 1 मोल पी का और 1 मोल क्यू का रिएक्ट कर रहा था, तो 1 मोल पी का और 1 मोल क्यू का रिएक्ट कर रहा है, और इनिशियली आर और एस क्या होंगे, जीरो, क्योंकि अभी तो रिएक्शन शुरू हुआ है, कुछ बना थोड़ी होगा, अभी तो 1 मोल पी का और 1 मोल क्यू का रिएक्ट कर रहा है, राइट। और इन्फॉर्मेशन उसने दी है कि इक्विलिब्रियम पे कितने मोल्स बचे हैं पी के, 0.6 मोल्स ऑफ पी आर प्रेजेंट इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे पी रह गया 0.6 मोल, इक्विलिब्रियम पे पी रह गया है 0.6 मोल। इसका मतलब है कि पी यूज कितना हुआ, अगर इनिशियली पी 1 था और इक्विलिब्रियम पे 0.6 रह गया, तो कितना पी यूज हुआ, यस 0.4, 1 माइनस 0.6 0.4, राइट। अब यहाँ से आप सबके चेंजेस निकाल सकते हो। अब इसकी रेशियो देखो, रेशियो से पी का 1 मोल है तो क्यू के कितने मोल हैं, 2, तो अगर पी में 0.4 मोल चेंज आएगा तो क्यू में कितना चेंज आएगा, 0.8 मोल्स, आर में कितना चेंज आएगा 0.4 मोल्स, और एस में कितना चेंज आएगा 0.4 मोल्स। जस्ट बिकॉज आपको पी के चेंज इन मोल्स पता चल गया कि पी इतना रिएक्ट कर रहा है 0.4, तो रेशियो से जो इक्वेशन में दी हुई है आपको फाइंड आउट कर सकते हो कि रिमेनिंग कितने करें, पी और क्यू की 1:2 की रेशियो थी, राइट। अगर पी 0.4 यूज हो रहा है तो क्यू 0.8 होगा, आर और एस की 1:1 की रेशियो है, तो जितना पी यूज हो रहा है उतना ही आर और एस बनेगा, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम पे भी सब कुछ निकल आएगा, क्यू इनिशियली 1 था, चेंज कितना आया 0.8, इक्विलिब्रियम पे बचेगा ये 0.2, आर इनिशियली 0 था, इक्विलिब्रियम पे 0.4 है, तो 0 प्लस 0.4, क्योंकि प्रोडक्ट्स हैं, इनिशियली कुछ नहीं थे, बाद में 0.4 बने हैं, तो चेंज कितना आया, इक्विलिब्रियम पे कितने बचे हैं 0.4 मोल्स, और एस इनिशियली 0 थे, और चेंज इतना कितना आया 0.4, ये भी 0.4 मोल, 0 प्लस 0.4, तो ये आपके आगे इक्विलिब्रियम पे मोल्स, जो कि आपने पहली इंफॉर्मेशन निकाली इसकी, उसने कहा था ना हाउ मेनी मोल्स ऑफ क्यू आर एंड एस आर प्रेजेंट, निकाल लिए हमने मोल्स। अब हमने एक्चुअली में कंसंट्रेशन निकाल ली। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, बिल्कुल, क्योंकि रिएक्टेंट्स यूज होते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट्स क्योंकि इनिशियली 1 है, तो बाद में 0.4 चेंज आया है, तो माइनस करोगे ना, इतना यूज हो गया, ओके। तो कंसंट्रेशन देख लेते हैं, क्योंकि हमने केसी के लिए तो कंसंट्रेशन ही निकाल लिया ना, वॉल्यूम 1 दिया हुआ है, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या बनता है, मोल्स ओवर वॉल्यूम, तो ये सब जब 1 से डिवाइड होंगे तो सेम यही वैल्यूज आ जाएंगी सबकी, बस यूनिट मोल पर डीएम क्यूब हो जाएंगे, है ना। 0.4 मोल पर डीएम क्यूब, 0.4 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। तो कहानी तैयार हो चुकी है, अब केसी का एक्सप्रेशन लिखते हैं, प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट आपके पास है आर, कोई कॉफिशिएंट नहीं, एस कोई कॉफिशिएंट नहीं, और रिएक्टेंट्स आपके पास पी कोई कॉफिशिएंट नहीं, और क्यू कॉफिशिएंट है 2, आर क्या है हमारे पास, आर और एस की वैल्यू है 0.4, तो 0.4 इंटू 0.4 ओवर पी की वैल्यू है हमारे पास 0.6, और क्यू की वैल्यू है हमारे पास 0.2, विच विल बी मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाइड तो नहीं, एक्सपोनेंट होगा उसका, बस इसको सॉल्व करेंगे और आपकी सीन सेट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा केसी का, क्लियर है। चलो, आगे एक और क्वेश्चन करवा दूं तुम लोगों को, तरह का कोई करवा दूं, नहीं अब डिफरेंट करवाता हूँ, ये वाला करते हैं। अब ये जो केस है, इसमें आपको एक्चुअली केसी की वैल्यू गिवन है, पता नहीं मैंने क्वेश्चंस पूरे क्यों नहीं लिखे, केसी इज इक्वल टू 49,
आपने अमाउंट ऑफ एच आई निकालनी है एट इक्विलिब्रियम। अमाउंट का मतलब मोल्स निकालने हैं आपने एच आई के एट इक्विलिब्रियम। तो अगेन H2, आई थिंक इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करूं। नीड मोर स्पेस। ओके, तो केसी की वैल्यू है हमारे पास, केसी की वैल्यू गिवन है आपके पास क्वेश्चन में, केसी इज इक्वल टू 49। अब देखो इक्वेशन है हमारे पास H2 प्लस I2 फॉर्म्स HI। वो कह रहे कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ HI एट इक्विलिब्रियम एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ आयोडीन आर हीटेड एट टेम्परेचर T until equilibrium is reached in a container of volume 10। अब यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे इक्विलिब्रिया पे कोई भी हमें चीज़ नहीं पता कि इक्विलिब्रियम पे वो कितनी पड़ी है। इफ यू रिमेंबर हमें ये पता था लास्ट क्वेश्चन में कि पी इक्विलिब्रियम पे कितना है, तो हमने माइनस करके एक किसी एक का चेंज निकाल लिया था, फिर सबका निकल आया था। अब हमें वो चेंज नहीं पता। ठीक है, अब मैं अगर आइस लगाऊंगा यहाँ पे, तो इनिशियल मोल्स मुझे पता है 1 है, हाइड्रोजन के भी 1 होंगे, एच आई अभी बना नहीं होगा तो 0 होंगे। लेकिन चेंज इन मोल्स मुझे नहीं पता, वो मुझे अज्यूम करने पड़ेंगे। लेट्स से अगर ये एक्स है और ये भी एक्स होगा, फिर 1-1 की रेशियो है, लेकिन ये 2x होगा। और इक्विलिब्रियम पे कितना बचेगा ये 1 माइनस एक्स। आयोडीन कितना बचेगा 1 माइनस एक्स। एच आई कितना बनेगा 2x, राइट। दैट विल बी इक्विलिब्रियम के मोल्स 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 2x। आपको फाइंड आउट करना है अमाउंट ऑफ एच आई एट इक्विलिब्रियम, यानी कि आपको 2x फाइंड करना है। x की वैल्यू फाइंड करोगे तो 2x निकलेगा ना। अब वो कैसे करेंगे, देखो सिंपल मैथ्स ही चल रहा है और कुछ भी नहीं है। अगला स्टेप क्या होगा, केसी का एक्सप्रेशन बनाना है, उसके लिए कंसंट्रेशन चाहिए आपको। तो कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, उसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा 1 माइनस एक्स ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको 10 दिया हुआ, 2x ओवर 10। ठीक है, अब केसी का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। केसी का एक्सप्रेशन है प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास एच आई, इसका कॉफिशिएंट है 2, और रिएक्टेंट आपके पास हाइड्रोजन और आयोडीन। प्लग इन करें वैल्यूज। हाइड्रोजन की 1 माइनस एक्स ओवर 10, एच आई की 2x ओवर 10, 2x ओवर 10 स्क्वायर ओवर हाइड्रोजन की कितनी है 1 माइनस एक्स ओवर 10, आयोडीन की कितनी है 1 माइनस एक्स ओवर 10। ठीक है, सिंप्लीफाई करें इसको तो 2x ओवर 10 और नीचे 1 माइनस एक्स ओवर 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और केसी की वैल्यू भी रिमेंबर हमें क्वेश्चन में दी हुई है विच इज़ 49। अब इनका स्क्वायर खत्म करने के लिए हम इनकी स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 7, ये आ जाएगा 2x ओवर 10 ओवर 1 माइनस एक्स ओवर 10। ये 10 भी कैंसिल हो जाएंगे। सो नाउ यू आर लेफ्ट विथ 2x ओवर 1 माइनस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 7। तो 2x ओवर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस 7, 2x ओवर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 7। सिंप्लीफाई करेंगे आप इसको, 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 7x, 2x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 7x। ये हो जाएगा 9x ओवर 7, यह हो जाएगा माइनस 2 माइनस 7x होगा यार, माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 7। इसकी वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 7 ओवर 9, इसकी आएगी x इज इक्वल टू 7 ओवर 5। अब कौन सी यूज़ करनी है हमने, हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपको ये बताया था उसने कि इनिशियल मोल्स कितने थे आयोडीन के या किसी भी चीज़ के, इनिशियल मोल्स कितने थे 1-1 थे ना दोनों के। तो जो x की वैल्यू है जो चेंज आया है वो 1 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना। अगर इनिशियल मोल्स 1 है तो 1 से ज़्यादा तो यूज़ नहीं हुए हो सकते ना।
ठीक है, तो जो वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है एक्स की, इस तरह ये इक्वल ग्रेटर देन 1 आ रही है, तो ये आप नहीं लेंगे, आप 7/9 लेंगे। तो एक्स की वैल्यू आपकी आएगी 7/9, और आपने निकालना क्या था, अमाउंट ऑफ एच आई, विच इज इक्विलिब्रियम पे 2x, तो 2 × 7/9 विल बी 14/9 आंसर आपका। प्रोसेस लंबा है, मैथ्स है, लेकिन मुश्किल नहीं है, इजी है। बेसिकली ये बात ना याद रखना कि मैं तुम लोगों को डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करवाता हूँ, ठीक है। दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब इस तरह से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, जिसमें आपको, कि वो केस है जिसमें आपको ये बताया ही नहीं हुआ कि इक्विलिब्रियम पे कितने मोल्स पड़े हैं, तो आपको चेंज एज्यूम करना पड़ता है, एक्स लेना पड़ता है। एक मिनट, क्या कह रहे हो तुम लोग? ओवरव्यू ऑफ दिस अगेन, ओके, आई विल। तो I had this equation and I was told that 1 mole of hydrogen and 1 mole of iodine was being formed, was being reacted, sorry. Okay, and I was given the value of Kc, that was 49. तो इनिशियल मोल्स हाइड्रोजन के 1 थे, आयोडीन के भी 1 थे, हाइड्रोजन आयोडाइड वाज 0, क्योंकि प्रोडक्ट है, अभी बनानी है। चेंज का मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता इक्विलिब्रियम पे कितने मोल्स पड़े हैं। तो मैंने अगर हाइड्रोजन का चेंज x लिया, तो आयोडीन का भी x होगा, उनके 1:1 की रेशियो, और एच का 2x होगा। तो इक्विलिब्रियम पे हाइड्रोजन कितना बचेगा, 1 माइनस एक्स, आयोडीन कितना बचेगा, 1 माइनस एक्स, हाइड्रोजन आयोडाइड कितना बनेगा, 0 + 2x, 2x। ये आपके आगे मोल्स फाइंड आउट करने के एट इक्विलिब्रियम। अब हमें केसी का एक्सप्रेशन लगाना है अगर, तो हमें कंसंट्रेशन की टर्म्स चाहिए, तो कंसंट्रेशन की टर्म्स निकाली मैंने, जो कि कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या होगी, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल्स ओवर वॉल्यूम। ये मोल्स की वैल्यू थी, ये सारी मोल्स की वैल्यूज थी, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, ये कंसंट्रेशन की टर्म्स आ गई। फिर मैंने केसी का एक्सप्रेशन लिखा, इन सबको प्लग इन किया। जब प्लग इन कर लिया इनको, फिर सिंप्लीफाई किया मैंने इसको, बस 1 - x/10 को स्क्वायर कर दिया। उसके बाद स्क्वायर ख़त्म करने के लिए मैंने अंडर रूट लिया, केसी की वैल्यू भी प्लग इन कर दी साथ में। जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो फिर हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं, एक प्लस में एक माइनस में। ये आपने मैथ्स में ओ लेवल में भी पढ़ा होगा, ठीक है। ये इसका स्क्वायर दोनों के कैंसिल हो गए, और ये 10 भी कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास 2x और 1 - x इक्वल टू +-7। यहाँ से आपकी दो इक्वेशंस बनेंगी, जिससे आप x की वैल्यूज निकालेंगे। एक वैल्यू x की 1 से ज़्यादा आ रही है, एक 1 से कम आ रही है, यू विल पिक द वन जो 1 से कम आ रही है, क्योंकि इनिशियल मोल्स जो हैं आपके वो 1 मोल। तो चेंज जो है विच इज़ x, इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, यू विल हैव टू पिक द x वैल्यू विच इज़ लेस देन 1। यू नीडेड टू कैलकुलेट द amount of HI at equilibrium, which was 2x। तो x की वैल्यू 7/9 है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14/9 will be your answer। जी बच्चों, इज इट क्लियर? रुमैसा, अजीन, सही है, सेट हो गया। हमजा, यस अजीन, दैट्स द होल पॉइंट। इस वजह से तो मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ कि पढ़ते नहीं हो तुम लोग खुद खुद से। तुम अभी तक जो है वो नोट्स रिवाइज कर रही हो और तुमने टॉपिकल्स नहीं किया, इस वजह से अब मैं टेस्ट ही लूंगा तुम लोगों के, ऐसे नहीं तुम लोग पढ़ने वाले। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट फुली अंटिल यू डू क्वेश्चन योर सेल्फ। मैं तो करता जाऊंगा, मेरा तो कोई पॉइंट ही नहीं है, मैं जितना मर्जी करता जाऊँ। अब देखो एक और करवाता हूँ, एक और कर लेते हैं, आई थिंक ये भी डिफरेंट है। नोट से मैं एक दो क्वेश्चंस किए हुए हैं, जो कि मैं यहाँ पे नहीं करवाऊंगा, वो आप लोग नोट से देख के सॉल्व करना, खुद ट्राई करना सॉल्व करने की। इसके नोट्स पढ़ोगे ना, एक सेकेंड, हाँ इसके नोट्स पढ़ोगे तो नोट्स में मैंने क्वेश्चन ही सॉल्व किए हुए हैं।
इस चैप्टर में एक्चुअली मैंने और कुछ किया ही नहीं है, मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन से सॉल्व कर लिया था। देयर इज नो पॉइंट कि मैं पहले आपको एक्सप्लेन करूँ फिर पास्ट पेपर प्रैक्टिस करूँ। वी आर डायरेक्टली डूइंग पास्ट पेपर क्वेश्चन, दीज ऑल आर पास्ट पेपर क्वेश्चन। अब ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, आई लाइक दिस क्वेश्चन। देखो इसमें कुछ दिया ही नहीं हुआ, लुक एट इट। हमें केसी निकालना है बट वी आर नॉट गिवन एनीथिंग, दिस नॉट इवन अ सिंगल वैल्यू। ठीक है, अब इसको कैसे करें, करते हैं इसको भी। आइस मेथड। ओके, तो इनिशियल मोल्स हमें नहीं दिए हुए, तो विल हैव टू अज्यूम इसका एक एक मोल रिएक्ट कर रहा है, तो हम इसको ऐसे ही ले लेंगे कि इसका एक मोल है और इसका भी एक मोल है, और इनके अभी कुछ बने नहीं होंगे। चेंज क्या आ रहा है, 2/3 ऑफ द एथेनोइक एसिड इज रिएक्टेड। 2/3 एथेनोइक एसिड रिएक्ट कर रहा है, यानी कि जो भी इसकी अमाउंट है उसका 2/3 ये रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, 2/3 ऑफ वन बेसिकली इज बीइंग रिएक्टेड, राइट। तो अगर ये 2/3 रिएक्ट करे तो आपका C2H5 भी आपका 2/3 ही रिएक्ट कर रहा होगा, और एस्टर भी आपका 2/3 ही बन रहा होगा, और वाटर भी आपका 2/3 ही बन रहा होगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे कितने बचेगा ये, 1 - 2/3, 1/3। और ये कितना बचेगा, 1 - 2/3, 1/3। प्रोडक्ट्स कितने बचेंगे, 2/3। तो ये आ गया आपके मोल्स एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, कंसेंट्रेशन क्या होगी, 1/3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम की वैल्यू भी नहीं दी हुई है आपको। एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। एक्चुअली ऊपर और नीचे जो है किसी का भी कोई कॉफिशिएंट है नहीं, सही है। तो प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स करें, तो प्रोडक्ट है आपका 2/3 ओवर वी, 2/3 ओवर वी ओवर 1/3 ओवर वी, 1/3 ओवर वी। ये वॉल्यूम सारे कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। जब कॉफिशिएंट सेम होते हैं ना तो कैंसिलेशन हो जाती हैं इस तरह से। अच्छा, अब बचा क्या आपके पास, ऊपर क्या बचा, ये थ्रीज भी कॉमन है सब में, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। सिंपल मैथ्स कर रहा हूँ ये मैं। बचा क्या ऊपर, 2 × 2, नीचे क्या बचा, 1 × 1। आंसर क्या हुआ आपका, 4। हाँ भाई, समझ आया। नहीं, एक्चुअली जब करने बैठते हो ना तो फिर आप घूम जाते हो कि तो मुझे कुछ दिया ही नहीं हुआ। बट ए लेवल्स गिव्स यू दिस फ्रीडम टू डू क्वेश्चंस इन डिफरेंट वेज। एक क्वेश्चन के मल्टीपल वेज हो सकते हैं करने के। सो वी आर डन विद अराउंड 60% ऑफ द चैप्टर, 60-70%। तो नेक्स्ट क्लास हमें मतलब टुमारो, यार बल्कि कल आई हैव टू गो टू स्कूल, मेरा सैटरडे ऑन है तो कल क्लास हो नहीं पाएगी। ठीक है, तो क्लास के टाइम में एक काम करो तुम लोग, क्लास के टाइम में तुम लोग एटलीस्ट नोट्स रिवाइज कर लेना। ठीक है, या तुम लोग जो टेस्ट है तुम लोगों का मंडे को वो रिवाइज कर लेना। ठीक है, ये नोट्स अलबत्ता लाजमी देख लेना। मैं इक्विलिब्रिया के नोट्स भेज रहा हूँ आपको, अभी भेज देता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। हम्म, भागना ना कहीं पे भी अभी। मैंने आपको इक्विलिब्रिया 1 और 2 के भेजे हैं, अभी आपने सिर्फ 1 रीड करना है। रोमैसा नोट्स नहीं, नहीं नोट्स मैं पीडीएफ में भेजता हूँ,
वो ज़्यादा ज़्यादा डिटेल्ड होते हैं, वो पढ़ लेना है। बट टेक्स्ट बुक कैम्ब्रिज की पढ़ लो यार। बट आई डोंट रियली रिकमेंड टेक्स्ट बुक्स टू प्रिपेयर। प्रिपरेशन के लिए टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ा करो, रिविजन के लिए पढ़ लिया करो। अगर आप पहली दफ़ा एक चैप्टर पढ़ रहे हो ना, तो पहले चैप्टर पढ़ लो, पास पेपर्स कर लो, उसके बाद टेक्स्ट बुक से फर्दर री के लिए पढ़ लो, जो कैम्ब्रिज की टेक्स्ट बुक आती है। कैम्ब्रिज की है ना बुक, कैम्ब्रिज की अपनी पब्लिश बुक है। इफ़ यू वांट, मैं ग्रुप में मेरे ग्रुप में बुक भी भेज देता हूँ अगर तुम लोगों के पास नहीं है तो। लेकिन बुक का भी कुछ करना नहीं। कैम्ब्रिज की ही है बुक, केमिस्ट्री। बच्ची क्या नाम है उसका, मैं बता देता हूँ। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एएस एंड ए लेवल्स, कैम्ब्रिज की बुक का जो नाम है, केमिस्ट्री कोर्स बुक। ठीक है बच्चों, एनी क्वेश्चंस? हाँ एमा, मंडे को टेस्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर और रिएक्शन काइनेटिक्स का। इस चैप्टर की कल तो, अच्छा एक एक करके। आयमा, मंडे को टेस्ट है at 5, ठीक है। और रोमेसा, हम नेक्स्ट लेसन में रिमेनिंग चैप्टर करेंगे और उसके बाद हम इसके पास पेपर क्वेश्चंस करेंगे। तो yes, we are obviously going to do more questions, but you are not going to get it until you do the questions yourself. और जो क्वेश्चन नहीं होते वो फिर बच्चे मुझे भेज देते हैं, एंड दैट हेल्प्स द स्टूडेंट्स। वहाँ से आपको क्लोजर मिल जाएगा। ठीक है रोमैसा, एनी अदर क्वेश्चन? या यू कैन। बच्चों बताओ रोमैसा को, शी वांट्स टू आस्क समथिंग।